Yes, please. In the previous classes, we were describing about the speed control of the DC machine. In the speed control of the DC machine, we have seen, if you see this is a DC shunt motor. In the DC shunt motor, if you apply the supply voltage here, then if you apply this voltage here, there will be some current flowing into this current is the, what is this current? Field current. Because it is shunt motor, so we can say it is a ISH, shunt field current. And the current flowing into the armature is the IA. This IA, armature current, depends upon how much voltage is generated here, E. This E generated is given by this E. Formula for E is equal to K phi omega. Okay, E is equal to K phi omega. This is the voltage generated here. Phi is the flux because of this, omega is the speed of this. So now, because of this V minus E, this is the supply voltage, this is the voltage generated or voltage developed. So V minus E divided by the resistance of this armature, this current flowing into this called IA. Now because of this IA, because of this current flowing into this and the field produced because of this, there is a torque at the shaft. This torque is given by K phi I. This is the torque produced on this shaft. Now because of this torque here and because of this V minus E is equal to I into RA. So, and in that, from there we can find the omega, and in place of that I, we put this value. Finally this equation comes. In the previous class we described this equation. Omega means how the speed of this shaft relates with the torque. It means if you increase the shaft on this torque here, in the normal running condition, you can say when torque is 0. Say for example here, this, when torque is 0, here torque is 0, V by K phi is the omega 0. Torque is 0, V by K phi is the initial value, that it is omega 0. When torque, this is the torque. When torque is 0, this will be the speed. Okay. Now, if you increase the torque, shaft में आपने अगर आप वेट बढ़ाते जाएं, if you increase the torque, then what will happen? This speed will be like this. On the shaft, if you have the 2 kg weight, then speed will be according to this. If you have 0 weight on the shaft, then speed will be this. So accordingly, this is the graph. Now, okay. And we have also seen, now if you increase the, if the, in place of the armature here resistance RA, in addition to the resistance RA, if you put the additional resistance say R, this RA plus R, resistance, if the resistance will increase, what will be the graph? If the resistance has increased, so suppose this is the resistance RA, so this is the graph. If resistance has increased, the graph will be like this. Further, if it can increase, it can be like this also. If you increase the resistance, the graph, this drop will be more. Resistance is higher, so drop will be more, so torque will be like this. Now in addition to that, let for example here, if you change the supply, in place of this is a positive, this is a negative. What if you do like this? This positive terminal is connected here and negative terminal is connected here. Then what will happen? What we expect? Say for example, it is not working. In the normal running condition, if you give the supply into this direction, then this will rotate into say for clockwise direction. Now it is stopped. Machine is stopped, but you give the supply like this. Plus is given here, plus point, and minus is given here. Then what will happen? It will reverse into the, it will rotate into the opposite direction. In place of a clockwise, it rotate into the anti-clockwise, because the current will be different, voltage will be different. Voltage, because of the voltage, IA will be in this direction, torque is equal to K phi I. If current direction has changed, so torque will change. Torque will change, so in place of clockwise, it will rotate into the anti-clockwise. No problem. Now what happens? What happens if we suddenly change? Say motor is running at
this is the normal speed say 1500 rpm, and your torque, for example, let your torque is this, let your torque is this, कितना टॉर्क आपने लगाया हुआ है, दिस इज द टॉर्क, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क द स्पीड इज दिस, ओके, दिस इज द वर्किंग स्पीड, ये आपका दिस इज नो लोड स्पीड इज 1500 rpm, इफ यू कनेक्टेड से 2 किलो न्यूटन टॉर्क, देन बिकॉज ऑफ दिस 1500 देयर इज 1400, say now motor is running at 1400 rpm like the clockwise direction. Now at that moment of time, if you change the direction of the supply, उस समय आपने ये immediately change कर दिया, so what will happen? It is normally running, so E, now देखिए what was the current I, here you see V minus E, formula क्या था पहले, V minus E is equal to IARA, ये formula. Now if you will change E, either you change the direction of E or you change the direction of V, so what will happen? This will be E plus V. So suppose for example this was 220 volt, for example this was 220 volt, this is 200 volt, so the resistance is very small, so current will be very very high. Otherwise if it is a 220 it is 200, and if it is a resistance is suppose 1 ampere 1 ohm, so current is 20 ampere, but here in this case if it is a, so current will be how much, in place of 20 ampere how much current will be there, 420 ampere current, so this is very very high current that cannot be allowed. देखिए rating normal running condition 20 ampere current, in place of 20 ampere if the current is equal to 400 ampere, so any machine is designed for a particular rating, in place of 20, yes please, in place of 20 if it is 25 then it's okay, it can be overloaded, but overloading cannot be the 400, so what will happen, the heavy current will burn out the winding. So to protect this, what we do, we can connect a very high external resistance, very high external resistance, जैसे हम उसको suppose it is moving in the clockwise direction, और हमने क्या करना है, उसका speed change करना है, in place of clockwise to anti-clockwise. So if we change the positive terminal to negative and negative to positive, at that moment of time we have to connect very high resistance into this. So if you connect very high resistance means in place of this R1, in place of R as a 1 ohm, earlier RA, say it is a 1 ohm, we connect RA plus R external, this R external 1 plus 20. So what will happen? Then current will again be within limit. Current will be within limit, but what will happen in addition to that? अगर आपने देखिए, when this is moving into clockwise direction, and you connect the heavy resistance into, if you connect, this is the normal torque, this is the torque working, present torque, या load torque. At the load torque, this is the speed omega L. And if you, this is the situation when you change the, if you connect the heavy resistance here, then this is the graph. But when the supply is negative, then the supply is in place of positive direction, it might be rotating into the negative direction. Means our torque speed characteristics may be, the torque speed characteristics may be like this. This is the omega torque. And if you connect the heavy resistance here, then torque speed characteristics like this. Now you see. Now there are two torque characteristics. जब clockwise direction में move कर रहा है, this is the torque speed characteristics. With heavy resistance, this is the torque speed characteristics. In case of anti-clockwise direction rotation, this is the torque speed characteristics. But because of the high resistance, this is the torque speed characteristics. Now what is happening? We change the, अब क्या कर रहे हैं हम? इस speed पे, इस torque पे काम कर रहे हैं. We are working at this speed omega L. At this omega L, load torque is TL. At that moment of time, you change the terminal. उस समय आपने टर्मिनल चेंज कर दिया, मतलब क्या हुआ, और हैवी रेजिस्टेंस भी लगा दिया, टर्मिनल भी चेंज कर दिया और हैवी रेजिस्टेंस भी लगा दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनल चेंज कर दिया तो हम इधर आ गए,
हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया तो इस पर आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इस स्पीड पे जब काम कर रहे थे उस समय हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये था। तो जब ये इस स्पीड पे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टॉर्क है पहले टॉर्क TL इस डायरेक्शन में था, अब TL नेगेटिव, ये पॉजिटिव टॉर्क ये नेगेटिव टॉर्क, जो ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा था इस पे टॉर्क उल्टा लगना शुरू हो जाए। घूमेगा तो वही एकदम से स्पीड आपकी अगर सपोज 1400 RPM ऐसे घूम रहा है 1400 तो इमीडिएटली तो माइनस 1400 नहीं हो जाएगी, लेकिन इस पे टॉर्क ये घूम रहा है इधर, लेकिन इस पे टॉर्क इधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो इस पे जो टॉर्क नेगेटिव लगेगा इस स्पीड पे ये टॉर्क ये क्रिएट हो गया, इस स्पीड पे ये स्पीड हुई, इस पे ये टॉर्क हो गया। दिस इज द टॉर्क डेवलप्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन। टॉर्क लग रहा है आपका आपका सपोज करिए बेल्ट के ऊपर वेट लगा हुआ और ऐसे घूम रहा है तो वो तो उधर ही घूमेगा, तो इट इज पॉजिटिव, बट आपका डेवलप्ड नेगेटिव हो गया। तो इतना जो एक्स्ट्रा एडिशनल टॉर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एडिशनल टॉर्क है, तो बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल टॉर्क क्या होगा, वो टॉर्क इज नेगेटिव तो इसकी स्पीड को कम करेगा। जब आपको सपोज करिए जैसे ये घूम रहा है और इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएं तो इसकी स्पीड को कम करेगा। जैसे आप इधर भाग रहे हैं, आप ऐसा करके भाग रहे हैं, सपोज करिए 10 km/h की स्पीड से ऐसे भाग रहे हैं और आपके ऊपर 10 kg का वेट है। इमीडिएटली अगर हमने क्या किया 10 की जगह 20 रख दिया तो आपकी स्पीड कम होगी, या एक व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाना शुरू कर दे तो आपकी स्पीड कम होगी। तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव टॉर्क हुआ, इस नेगेटिव इतने दिस प्लस दिस की स्पीड कम होगी। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो जब आप सपोज करिए स्पीड हमारी इसकी बजाय अब स्पीड ये हो गई, स्पीड थोड़ी कम हुई तो इस स्पीड पे टॉर्क क्या हुआ, इतना टॉर्क हुआ, मींस इतना यहाँ से लेके दिस इज द टॉर्क, दिस इज नेगेटिव टॉर्क, दिस इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टॉर्क, तो इसकी वजह से नेगेटिव, फिर स्पीड और कम होगी, स्पीड कम होगी तो स्पीड ये आ गई, फिर टॉर्क ये हो गया, फिर टॉर्क ये हो गया, फिर टॉर्क ये हो गया। जब स्पीड जीरो होगी, when the speed is zero at that time torque is negative, तो स्पीड जब जीरो हो गई अब नेगेटिव टॉर्क का, अब ये पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था अब ये नेगेटिव, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। क्यों करेगा, अभी इसकी वजह से टॉर्क यहाँ जीरो हो गया, स्पीड जीरो पे ये वाला टॉर्क कुछ नहीं रह गया, और इस टॉर्क की वजह से हमारा अब ये इधर घूमने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा तो ये हमारा अब टॉर्क क्या होगा, ये जब स्पीड ये अब नेगेटिव डायरेक्शन ना स्पीड आपकी ये वाली स्पीड हो गई, टॉर्क कम हो गया, ये ऐसा टॉर्क कम होता गया, टॉर्क कम होता जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क कम हो रहा है, स्पीड तो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन टॉर्क कम हो रहा है, लेकिन हमें टॉर्क कम कर देंगे तो पावर भी नहीं रहेगी और ऐसे घूमेंगे कैसे, तो फिर क्या करेगा, इस पॉइंट पे आते ही, यहाँ पे आते ही हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसे हटा देंगे, तो क्या होगा, अब जब रेजिस्टेंस हटा दिया तो ये वाला कर्व आ गया, तब टॉर्क ये हो गया, टॉर्क हमारा ये इसके अकॉर्डिंगली इस स्पीड के अकॉर्डिंगली सपोज यहाँ पहुंच गया, इस स्पीड के अकॉर्डिंगली ये टॉर्क हो गया टी, जो ये टीआर पॉजिटिव था वो नेगेटिव टीआर हो गया और उस पर ये कंटिन्यू घूमता रहेगा। गेटिंग दिस पॉइंट नॉट? मतलब क्या हुआ, इसे पहले हाई स्पीड पे सपोज 1400 आरपीएम पे घूम रहा था तो 14 से 1300 आरपीएम आएगा, 1200 आरपीएम आएगा, 1000 आएगा, फिर 100 आरपीएम आएगा, फिर जीरो के बाद फिर आपका अपोजिट डायरेक्शन में 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, 1000 आरपीएम, फिर हमने एकदम रेजिस्टेंस हटा दिया तो फिर आपका 1400 आरपीएम अपोजिट डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगा, मींस इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। उस समय हमारा जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको उतना जितना आपका टॉर्क लगा हुआ था उतना ही टॉर्क डेवलप हो रहा है। दिस इज द टॉर्क डेवलप्ड, दिस इज द टॉर्क अप्लाइड, शाफ्ट के ऊपर अप्लाइड और ये डेवलप हो रहा है, दोनों इक्वल हो गए, उस टॉर्क पे कंटिन्यू घूमता रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा था, स्पीड को पहले ब्रेक लगाया, पॉजिटिव डायरेक्शन घूम रहा था, दिस इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग। सो मेथड ऑफ ब्रेकिंग आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग्स आर देयर। एक तो क्या था, आप मैकेनिकल ब्रेकिंग पहले लगाते थे, है जैसे आपका साइकिल पे मूव कर रहे हैं तो मैकेनिकल ब्रेकिंग लगाया तो आपका सारा का सारा एनर्जी क्या होता था, हीट में कन्वर्ट हो जाता होगा और आपका लॉस्ट होता था, वेस्टेज होता था। यहाँ क्या हो रहा है, आपका एनर्जी
क्या हो रहा है, यहाँ भी इसमें वेस्ट हो रहा है, बकाया एनर्जी आपका वापस मिल जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग. So this is the first method of braking called the plugging. Another method of, अच्छा, in this is the shunt motor. This is shunt motor. In addition to that there are series motor also. देखिए इसमें क्या है, फील्ड का डायरेक्शन. If you see here, field direction is same. Field current direction is same. Only the armature current direction is changed. क्योंकि phi is the same. केवल क्या करते हैं हमने, आर्मेचर की करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं. फील्ड इज नॉट चेंज, या ओनली आर्मेचर करंट डायरेक्शन इज चेंज इन दिस वे. नाउ सिमिलरली, नाउ सीरीज DC shunt, now DC series. What is the difference between shunt and series? This is the here, because of this winding, the flux is always constant. This is connected to the parallel to voltage, so flux is constant. But here you see in DC series motor, this current I depends upon load. This current depends upon the load, how much load is connected to shaft. So this IA can be, if load is zero, current is zero. If load is high, current is high. It means जो flux है आपका, flux is not constant, flux is changing. इसका मतलब क्या होगा, torque is K phi I, and this phi is dependent upon I, armature current. इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा जो torque speed characteristics है, if you remember this, so we describe the torque speed. Here torque is proportional to IA square. इसमें क्या था, torque is proportional to I. Here torque is proportional to I square. And if you write the exact formula which we described in the previous classes, this was the A dot under root T RA plus R. This is the torque speed formula. Okay, in DC series motors. So देखिए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस. इसमें डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट इज मूविंग इनटू दिस डायरेक्शन. हियर आल्सो करंट शुड मूव इनटू दिस डायरेक्शन. बट जो आपका सप्लाई था, दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड, V प्लस माइनस. हियर यू सी दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस. नाउ दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज कनेक्टेड हियर. ठीक है, डायरेक्शन चेंज करना है इसका, फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है. इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बोथ, देखिए डीसी सीरीज मोटर में इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आई का डायरेक्शन ये दे दिया, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आई टॉर्क नेगेटिव हो जाता है. बट हियर इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आई, क्या होगा, आई इंटू आई, दिस इज आई स्क्वायर. आई प्लस हो, आई माइनस भी कर देंगे तो भी टॉर्क सेम रहेगा, टॉर्क का डायरेक्शन सेम रहेगा. Getting this point or not? If you change the direction of current, torque will not be changed. Torque को वही रहेगा और उसी डायरेक्शन में मूव होता रहेगा, because it's proportional to I square. Because phi is also proportional to. So we have not to change the direction of phi, but we have to change the direction of only I. That's why this connection is made like this. Yeah. इसका डायरेक्शन तो सेम है, बट हियर यू चेंज, वी हैव चेंज दिस डायरेक्शन. दिस इज प्लस, अर्लियर इट वाज प्लस, इट वाज माइनस, एंड फ्रॉम हियर द हैवी रेजिस्टेंस के बाद ही बाहर आ गया. ओके, तो ये यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, इमीडिएटली भी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या इमीडिएटली भी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट टू द आर्मेचर. हियर आल्सो भी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट टू द आर्मेचर, बट द डायरेक्शन इज द सेम. Now what will happen? Here torque speed characteristic like this. Here torque speed characteristic formula is like this. So this graph will be. So this graph.
speed versus torque. If you remember, we also described the torque speed characteristics of DC series motor. This was the torque speed characteristic of shunt motor. This is the characteristic of DC shunt motor. We also described this also in the previous classes. But now if you connect the resistance, just इसमें क्या है? Here we change the direction of this and we change the direction. We connect the resistance. So when we connect the resistance, here you see this is the torque speed characteristic. When we change the direction of current, जैसे हमने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये कर्व हो गया, इसमें भी हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो हमारा कर्व आपका ऐसे हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस लगाने पर इसमें अगर आप हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, दिस इज द ओमेगा वर्सेस टॉर्क. ओमेगा वर्सेस टॉर्क ग्राफ इज दिस ग्राफ इज ड्रॉन फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, हियर यू सी 1/√2. इफ यू प्लॉट दिस ग्राफ विल कम. सो इफ यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस, दिस ग्राफ विल कम. And if you change the direction of the supply, graph will be like this. If you connect the high resistance, graph will be like this. Okay. Now the same things have happened. जो आपका यहाँ था, same चीज आपका यहाँ होगा. Suppose करिए. Now suppose you are working here. आपकी नॉर्मल स्पीड ये है और टॉर्क ये है. आपको पता है डीसी सीरीज मोटर आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट एट नो लोड. जब आपका स्पीड 0 है उस समय ये क्या करेगा, और टॉर्क 0 है तो हैवी स्पीड इनफाइनाइट स्पीड हो जाएगी. सो ऑलवेज इट इज स्टार्टेड एट सम टॉर्क. सपोज ये टॉर्क है, उस टॉर्क पे आपने स्टार्ट किया तो ये आपकी स्पीड है. अब इतनी स्पीड पे आपका सपोज ये दिस इज द 1400 आरपीएम, जैसे वहां था ये 1400 आरपीएम पे ऐसे घूम रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन. एट दैट टाइम हमने क्या किया, इसको सप्लाई को रिवर्स कर दिया. हाई रेजिस्टेंस सप्लाई को रिवर्स कर दिया तो आप इधर आ गए. हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो इस पर आ गए. तो इस पर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इतनी स्पीड पे, स्पीड तो पॉजिटिव है बट स्पीड इज पॉजिटिव एंड दिस टॉर्क विल बी नेगेटिव. स्पीड पॉजिटिव है 1400 आरपीएम इन वन डायरेक्शन और टॉर्क नेगेटिव हो गया. तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टॉर्क फ्रॉम हियर टू हियर इट विल ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड. ब्रेकिंग, इट विल एक्ट एज ए ब्रेकिंग. सो व्हेन इट विल ब्रेकिंग विल बी अप्लाइड, स्पीड विल बी लेस. स्पीड आपकी थोड़ी कम हो जाएगी. इट विल डिक्रीज, व्हेन स्पीड टॉर्क विल आल्सो डिक्रीज. फिर आपका टॉर्क कम हो गया, फिर स्पीड कम हो जाएगी. ऐसा करके आपका फाइनली एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम here speed will be 0. When speed will be 0, because of this additional torque, it will rotate into the opposite direction. So when it will rotate to the opposite direction, speed will go on increasing into the opposite direction, but torque will go on decreasing. At this instant of time, what we can do? At this instant of time, we remove the resistance. This resistance is removed, so we will reach on to this. It means जो हमारा टोटल टॉर्क जो पॉजिटिव लग रहा था वो नेगेटिव में लगेगा एंड स्पीड आपका 1400 टू -1400 आरपीएम आ गया. सो दिस इज द सेम एज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. ओनली थिंग दिस इज फॉर द शंट, दिस इज फॉर द सीरीज. ओके, एंड दिस इज अबाउट द प्लगिंग ऑफ द मशीन. प्लगिंग, दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड द प्लगिंग. एंड द टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज द डीसी ब्रेकिंग और रोटेटिव ब्रेकिंग. ओके, this rotating braking or it is also called as a DC braking. देखिए यहाँ हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया. You have changed the direction. Suppose in place of changing the direction here, हमने यहाँ क्या किया था, आपका ऐसे ही सप्लाई जा रहा है. Because of supply, IA current is going like to this. Now, supply is here. Supply V is applied here at the shunt. Shunt में जो आपका फील्ड करंट है ISH वो एज इट इज है. फील्ड करंट में जो आपका करंट जा रहा है फ्लक्स, because of this field current, we are not disturbing the field current, and because of this field current the flux is always be as usual. फ्लक्स तो जैसा है वैसा है, केवल हमने यहाँ हमने ये प्लस ये माइनस था, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया था. नाउ
Now what we are doing here, in place of giving supply from positive side to negative side, what we can do, देखिए ये इसमें जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी है आपका टॉर्क इज देयर, इनिशियली टॉर्क इज देयर एंड ओमेगा इज देयर, टॉर्क इनटू ओमेगा, इसमें एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इफ देयर इज नो फ्रैक्शन, अगर कोई फ्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा, अगर हम इफ वी मेक द स्विच, इसमें जो स्विच था ये स्विच ओपन कर दिया, इफ वी मेक द स्विच ओपन देन व्हाट विल हैपन, सप्लाई अगर हमने बंद कर दी तो क्या होगा, if we are not giving the supply then what will happen, मोटर स्टॉप है मोटर स्टॉप हो जाएगी सर। क्यों हो जाएगी स्टॉप, सप्लाई नहीं होगी सर, कहाँ से स्टॉप क्यों हो जाएगी, स्टॉप होने का रीजन क्या होता है, वाई जैसे हमारे शरीर को खाना मिलता है इसको सप्लाई मिलेगी तभी नहीं, इसमें बताओ, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताओ कि अगर आपका जैसे सपोज करो ये बॉल है, आपने एक बार सप्लाई दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो स्टॉप क्यों हो रही है, फ्रैक्शन, तो यही तो पूछ रहा हूँ कि फ्रैक्शन की वजह से आपका ये स्टॉप हो रही है, बट आई एम सेइंग हमने कहा कोई फ्रैक्शन नहीं है, तब क्या होगा, रोटेट करती तो ये कंटिन्यू रोटेट करती रहेगी। तो बी आर वर्क हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कोई फ्रैक्शन नहीं है और ये कंटिन्यू रोटेट कर रही है। नाउ व्हाट वी डू, फिर इसे स्टॉप कैसे करें, इफ देयर इज नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से तो ठीक है, कारण फ्रैक्शन होने में 5 मिनट लग रहे हैं, एनर्जी आपका 10 सेकंड लग रहे हैं, हमें 10 सेकंड तक वेट नहीं करना है, ये मान लें इवन इफ देयर इज नो फ्रैक्शन, तो अब इसको स्टॉप करना है तो कैसे करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाँ, तो अगर जो ये E, जो यहाँ E था, E इक्वल टू K फाई ओमेगा, ठीक है, उसकी वजह से जो आपका अदरवाइज क्या था, वोल्टेज करंट इधर जा रहा था, अब आपने यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर लगा दें तो स्पीड भी सेम है, स्पीड अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, फ्लक्स आपने चेंज नहीं किया, फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो E कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में रहेगा, E इक्वल टू K फाई ओमेगा, फाई का डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, ओमेगा का भी डायरेक्शन आपने चेंज नहीं किया है, केवल आपने क्या किया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया ये इधर, तो इसकी वजह से E हमेशा इधर ही रहेगा, ऐसे तो था, E का डायरेक्शन सेम रहेगा, E का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहला करंट का डायरेक्शन इधर क्यों था, बिकॉज B वोल्टेज वाज मोर देन द E, B की वैल्यू इससे ज्यादा थी तभी तो इधर था, अब वो B है ही नहीं, तो इसका अपना वोल्टेज है, अपनी वोल्टेज में अगर प्लस और माइनस है तो प्लस में आउटपुट होगा, तो इसमें ये करंट आपका इधर फ्लो करेगा, और दिस करंट विल कंटिन्यूअसली टू फ्लो, दिस करंट विल कंटिन्यूअसली टू फ्लो, तो ये एनर्जी आपका E इनटू E आई स्क्वायर आर इसका लॉस होगा, और आई स्क्वायर आर लॉस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, सो दिस नाउ सी, जो हमारा ये कर्व था ओमेगा वर्सेस टॉर्क, and if voltage is not there, so omega versus torque, this will be the graph. If R1 R3 is greater than R1, तो आपका ये कर्व आ गया, देखिए आप यहाँ पे काम कर रहे थे, लोड टॉर्क, दिस इज द लोड टॉर्क एंड स्पीड इज 1400 आरपीएम, लेकिन अब आपने यहाँ क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, तो टॉर्क नेगेटिव हो गया एंड V इज नॉट देयर, तो दिस इज द ग्राफ, इसकी वजह से दिस इज द नेगेटिव टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क लगेगा तो आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा है, या तो कहीं आपने एनर्जी लॉस कर दिया और इतना नेगेटिव टॉर्क होगा तो बिकॉज ऑफ दिस स्पीड डाउन होती जाएगी, और आपकी स्पीड यहाँ पे देखिए कैन बी विल रीच, ये 1400 आरपीएम था, 1400 आरपीएम के बाद जब आप सपोज 50 आरपीएम पे पहुंचे, 50 आरपीएम पे पहुंचे और टॉर्क बहुत कम हो जाएगा,
टॉर्क इज ओनली दिस। यहाँ पे टॉर्क कितना है, टॉर्क कम हो गया, तो जो टॉर्क कम होगा उससे क्या होगा, नेगेटिव, जो ब्रेकिंग टॉर्क कम होगा तो स्पीड और धीमे धीमे करेगा, तो ये बहुत टाइम लेगा। तो हम क्या करते हैं, जब ये स्पीड यहाँ पहुंच गया, सपोज स्पीड यहाँ पहुंच गया, तो इस रेजिस्टेंस को हटा दिया, फिर एक्स्ट्रा टॉर्क बढ़ गया, रेजिस्टेंस और बढ़ गया, फिर ये सो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ ब्रेकिंग। अभी जो होता है दैट इज द इन द ट्रैक्शन देयर इज ए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, मैकेनिकल। आपका सपोज करिए ट्रेन जा रहा है, उसमें मैकेनिकल ब्रेकिंग लगा लेंगे, मैकेनिकल ब्रेकिंग इज नॉट अलाउड, उतना लग भी नहीं सकता है। तो देयर इज इनसाइड दैट देयर आर डीसी सीरीज मोटर, तो आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। सो दिस टाइप ऑफ दिस इज द rotative braking, because we have used the resistance here, and this is also called the DC braking. Okay, ठीक है। and ये टॉर्क इज इक्वल टू k phi i, ये फॉर्मूला आपका, दिस इज द फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू k phi i, टॉर्क इज इक्वल टू k phi i। ओके, दिस i k phi I what is I, this current, this current is E by R with minus sign। इसका जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है ना, दिस वोल्टेज इज E एंड E इज इक्वल टू k phi ओमेगा, और k phi E की जगह k phi ओमेगा by R। so this formula will be k phi square by R ओमेगा टॉर्क। तो ये हमारा कर्व ये वाला हो गया, पहले ये फॉर्मूला था आपका, अब हमारा फॉर्मूला ये हो गया। ओके, सो इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? यहाँ तो कुछ पूछना है? वन मोर ब्रेकिंग इज लेफ्ट दैट वी कैन टेक इन द नेक्स्ट क्लास, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। देखिए, एक तो यहाँ क्या हो रहा था, प्लीज लिसन जस्ट टू समराइज दिस। इन द प्लगिंग वी कनेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एनर्जी आपका रेजिस्टेंस में आपका जा रहा था, और एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी इनटू दिस रेजिस्टेंस, और आपका ब्रेकिंग लग रहा था। यहाँ भी आपका एनर्जी वाज यूटिलाइज इनटू दिस रेजिस्टेंस, तो यहाँ भी आपके स्पीड कम हो रहा था। नाउ अनदर इज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें कहते हैं कि व्हाई टू वेस्ट द एनर्जी इनटू द रेजिस्टेंस, दिस एनर्जी स्टोर्ड, काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है व्हीकल का, इन प्लेस ऑफ वेस्टिंग इनटू द रेजिस्टेंस कैन बी यूज दैट एनर्जी फीडबैक टू द सप्लाई, वो एनर्जी आपका सप्लाई में वापस चला जाए, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो हमारा एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो आजकल यही रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो हाइब्रिड गाड़ी हाइब्रिड कार है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज होता है। ठीक है, सो दैट वी कैन टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कोई पूछेगा? हाँ भाई, आप खड़े होकर पूछो। हाँ यस, आप खड़े, यस स्टैंड अप। ये और एक वो दिव्यांश के बगल में देवांग हाँ या खड़े हो, यू आस्क सम क्वेश्चन ऑन कैमरा को दी भाई, माइक खड़े माइक दी। हां यस स्टैंड अप, आस्क सम क्वेश्चन। ले भाई गाना ऑन कर दे। यस यू आस्क सम क्वेश्चन। भाई चलना पड़ेगा गाना लेक्चर बना कोई भी any question you can ask, how this formula is derived, how this formula is derived, any other question? पहले इसका जवाब सर, इसमें से कुछ भी पूछ सकते, पहले इसका जवाब सर ये में क्या था, survive breaking is required, ये आउट ऑफ सिलेबस। तो अमन देखिए, प्रैक्टिकली इफ यू सी द एप्लीकेशन, सपोज यू आर गोइंग टू द व्हीकल एंड यू आर एट द स्पीड ऑफ द 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ if you say braking is not required, so how will you do your life useful, whether your life will be useful there or not? If you are moving in a car with a speed of 100 km per hour, 100 is too much. If you are moving at 10 km per hour, so whether braking is required or not? Why it is required? To stop the vehicle.
why stop is required? Why not to move continuously throughout the life? एक्सीडेंट कर जाएगा अच्छा, if accident नहीं हो फिर पेट्रोल खत्म नहीं, फिर भी जरूरत है कि नहीं है? अगर सपोज एक्सीडेंट इज नॉट देयर और द रोड इज मेड ओनली फॉर यू, रोड आपके लिए बना दी, अब बताओ पेट्रोल तो खत्म हो ही जाएगा मान लो पेट्रोल भी है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है आपका, सर जिस काम से गाड़ी में बैठे हैं सर हाँ, तो आपकी लाइफ के लिए ब्रेकिंग की जरूरत है?